Hello students. In today's sessions we are going to start with a new chapter of class 12 chemistry, that is unit 9, coordination compound. So in today's sessions we are going to learn about one of the theories and some definition of important terms pertaining to coordination compound. So students, I have made a good number of videos on physics and chemistry of class 11th and 12th. The playlist could be easily found out at my YouTube channel, that is Bakhtiyar Khan P-Tech, gold medalist, where you can go through all the chapters of physics and chemistries, and there you can look over those chapters. So myself, Bakhtiyar Khan, having 6 years of teaching experience, and I've been guiding a student from 2016 onwards. So the student who had enrolled under me had many to good colleges of India and abroad, and the student in the current years are also getting guidance for NEET and JEE and class 12th as well. So I provide coachings for class 11th and 12th, including preparations for JEE and NEET. So it is a one-stop solution for your preparations. So with this note, I would like to start a sessions. So let us start our sessions with an important terms. And what do you mean by a coordination compound? Let us understand the importance of coordination compound and what do you mean by the coordination compound. So coordination compound, coordination coordination compounds. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किसको बोलते हैं? लेट अस अंडरस्टैंड. सो लेट अस अंडरस्टैंड कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो बनता है वो किस मेटल से बनता है. ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन मेटल्स जानते हैं कौन होता है? जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होता है उसे हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल्स. सो ट्रांजिशन मेटल्स form large number of coordination compound. So transition metals form large number of coordination compounds in which metals are bound to number of anions and neutral molecule. In metals are bound to anions or neutral molecules. ठीक है. एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ पे देखिए K4 Fe CN6, ये अनायनिक लिगेंड है, इसको हम लोग लिगेंड्स बोलते हैं. ये सेंट्रल मेटल एटम से अटैच्ड होता है, एंड दिस कॉम्बिनेशंस ऑफ मेटल्स, आयंस एंड सम काउंटर आयन मेक्स ए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. देयर आर गुड नंबर ऑफ एग्जांपल लाइक आप जानते हो, लाइक K3 FeCN6, K4 FeCN6 हो गया, CO NH3 6 Cl, ठीक है, Cl2 CONH3 6 Cl, इस तरह से Cl2 इस तरह से कर दीजिए. ये हमारा सब कंपाउंड बनता है, इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है कि इसमें डी ब्लॉक एलिमेंट होता है. ये ट्रांजिशन मेटल्स है जिससे अटैच होता है अनायनिक लिगेंड या न्यूट्रल मॉलिक्यूल. तो न्यूट्रल लिगेंड किसको बोलते हैं, अनायनिक लिगेंड किसको बोलते हैं, वो हम लोगों को थोड़ी देर में पता चल जाएगा व्हेन वी प्रोसीड विद द डिस्कशन. तो ये सब ट्रांजिशन मेटल्स हैं. ठीक है. तो ये डिफिनीशन क्या बोलना चाह रहा है कि ट्रांजिशन मेटल्स जो होता है वो फॉर्म करता है large transition metals form large number of coordination compounds in which metals are bound to anions or neutral molecules.
तो ये ट्रांजिशन मेटल बाउंड इससे है, इस न्यूट्रल या अनायनिक लिगेंड से, इस न्यूट्रल से अटैच्ड है, तो हम लोग बोलते हैं ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हु गेव द स्ट्रक्चर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वाज वर्नर। तो लेट्स अंडरस्टैंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ वर्नर एंड हिज पोस्टुलेट। So Alfred Werner was a Swiss chemist. He was a Swiss chemist, and he gave a very popular theory to understand the structure of a coordination compound, जिसका नाम है, उस popular theory का नाम है Werner theory. तो let us understand the Werner theory. तो Werner theory ने कुछ postulate दिया था. Postulate was a assumptions which was practically found to be matching with the practical explanations. So he gave some assumptions which was practically validated through experiment, and those popular theories is called the Werner theory. So Werner theory, Werner ने postulate में क्या दिया था कि metals जो attached होगा वो primary और secondary valency से attached होगा. Metals show linkages of primary and secondary valencies in coordination compound. In coordination compound, metals shows two type of linkage. Metals shows two types of linkages. उस दो टाइप ऑफ लिंकेजेस का नाम क्या है? एक का नाम है प्राइमरी वैलेंसीज और दूसरे का नाम है सेकेंडरी वैलेंसीज, सॉरी। तो उसने पॉस्टुलेट दिया कि एक मेटल है वो टू टाइप ऑफ लिंकेजेस शो करता है, उसमें क्या है, एक प्राइमरी वैलेंसी है, एक सेकेंडरी वैलेंसी है। उन्होंने प्रपोज किया कि प्राइमरी वैलेंसीज क्या होता है, वो आयनाइजेबल पार्ट होता है और वो इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है, ठीक है। तो इसने बताया कि प्राइमरी वैलेंसी जो होता है वो क्या होता है, प्राइमरी वैलेंसी इज आयनाइजेबल या आयनाइजेबल है, एंड इट इज इक्वल टू ऑक्सीडेशन नंबर of सेंट्रल मेटल एटम। सेंट्रल मेटल एटम अभी बताते हैं आपको कौन है, सब समझ में आ जाएगा अभी। सेंट्रल मेटल एटम के बराबर होता है प्राइमरी वैलेंसी, और नहीं, ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होता है। दूसरा इन्होंने बताया कि सेकेंडरी वैलेंसीज होता है, और जो कि वो नॉन आयनाइजेबल है, जो आयंस में नहीं बदलता, उसे हम लोग बोलते हैं नॉन आयनाइजेबल, और इट इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम। चौथी बात इन्होंने पॉस्टुलेट में अपने दिया कि जो आयंस है जो सेकेंडरी लिंकेजेस से सेंट्रल मेटल एटम से अटैच्ड है, वो किसी एक डिफाइंड अरेंजमेंट में, जिसको स्पैटियल अरेंजमेंट बोलते हैं या कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा बोलते हैं। इन्होंने बताया कि द आयंस और ग्रुप्स bound to the metal have characteristic spatial arrangement, spatial arrangement। इन मॉडर्न टर्मिनोलॉजी इसको हम लोग बोलते हैं कॉल्ड कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा।
ये मॉडर्न टर्मिनोलॉजीज है, ठीक है, कॉल कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रा। तो इसने बताना चाहा कि जो मेटल्स है, ये सपोज कि मैंने मेटल्स लिखा है, उसमें जो अरेंजमेंट है लिगेंड्स का वो किसी डिफाइंड अरेंजमेंट हो सकता है, ये हो सकता है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो सकता है, इसको हम लोग बोलते हैं टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। तो वी विल लुक इनटू इट कि किस तरह से अरेंजमेंट होता है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। किसी का स्क्वायर प्लानर होता है, किसी का स्क्वायर प्लानर, जैसे ये मेटल है किसी सेंट्रल मेटल एटम से अटैच इस तरह से है, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर स्पैटियल अरेंजमेंट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम टू आयंस ऑफ ग्रुप, इसको हम लोग बोलते हैं स्क्वायर प्लानर, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने पोस्टुलेट को एक्सप्लेन किया। तो इस पोस्टुलेट को हम लोग अब इसको यूज करते हैं फॉर एक्सप्लेनिंग द कंपाउंड विच ही यूज टू एक्सप्लेन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। तो इन्होंने अपने पोस्टुलेट को एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जाम्पल लिया और अपने थ्योरी को एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। तो सबसे पहला एग्जाम्पल इन्होंने लिया कि क्वेश्चन के थ्रू बताता हूँ कि इन्होंने लिया CO NH3 6Cl3, ठीक है। इन्होंने ये कंपाउंड लिया और इससे अपना प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी को एक्सप्लेन करना चाहा। इस कंपाउंड का कुछ नाम होता है, वी विल बी डिस्कसिंग इट अंडर द IUPAC लेक्चर्स। सो अभी फिलहाल आप समझिए कि ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपके सामने पहली बार देखने को मिल रहा है, तो बस इसको इस तरह से समझना है जैसे वर्नर ने हम लोगों को बताया। तो लेट अस अंडरस्टैंड, सपोज कि मैं वर्नर हूँ जो एक्सप्लेन करना हो थ्योरी को, तो इन्होंने बताया कि देखिए इसका प्राइमरी वैलेंसीज और सेकेंडरी वैलेंसीज कैसे निकालना है। तो सबसे पहले इन्होंने प्राइमरी वैलेंसीज निकाला, इसका सॉल्यूशन निकाला इन्होंने कि प्राइमरी वैलेंसीज कैसे निकलता है, प्राइमरी वैलेंसी इसका कैसे निकलता है। तो प्राइमरी वैलेंसी किसके बराबर होता है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, सेंट्रल मेटल एटम, इसको CMA भी बोलते हैं, सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, CMA। तो इसमें ऑक्सीडेशन नंबर ये हमारा सेंट्रल मेटल एटम है, इसका सेंट्रल मेटल एटम का हम लोगों को निकालना है कोऑर्डिनेशन नंबर, ये प्राइमरी वैलेंसी। तो इन्होंने इसको बोला कि आप इसको X मान लो। अमोनिया जो है आपका न्यूट्रल लिगेंड है, अमोनिया इज ए न्यूट्रल लिगेंड, जो कि अभी हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। ये हमारा न्यूट्रल लिगेंड है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, ठीक है। तो ये हमारा न्यूट्रल लिगेंड है। जो सेंट्रल मेटल एटम के बगल में जो रहता है उसको हम लोग लिगेंड बोलते हैं। ये सेंट्रल मेटल एटम है, उसके बगल में जो रहता है जो लिगेंड किसको बोलते हैं, जो लोन पेयर डोनेट करता है, ठीक है। तो इन्होंने न्यूट्रल लिगेंड उसका नाम दिया। तो 6 कितना है, ये 6 नंबर है, तो वी विल टेक इट एज 6 × 0। और क्लोरीन का पता है हम लोगों को 3 × -1 होता है, R = 0। ये टोटल होल मॉलिक्यूल न्यूट्रल है तो इसलिए ये 0 आएगा। तो यहाँ पर देखिए x + 0 - 3 = 0, तो हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर +3 आ गया, x = +3। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द सेकेंडरी वैलेंसी इन्होंने कैसे निकाला। सेकेंडरी वैलेंसी निकालने का तरीका इन्होंने बताया, सेकेंडरी वैलेंसी निकालने का तरीका इन्होंने बताया, सेकेंडरी वैलेंसी कैसे निकालना है। सेकेंडरी वैलेंसी इन्होंने अपने पोस्टुलेट में बताया कि ये कोऑर्डिनेशन नंबर की तरह है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे निकालना है, लेट अस एक्सप्लेन, लेट अस अंडरस्टैंड दिस कि कोऑर्डिनेशन नंबर इन्होंने बताया कि आपको पहले फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ लिगेंड कितना है, और जब लिगेंड पता चल जाए तो उसको दोनों डेंसिटी से गुना कर देना है। तो नंबर ऑफ लिगेंड्स देख लेंगे कि कितना है, और इनटू डेंसिटी मतलब कितना डोनर साइट है, डेंसिटी, ठीक है। तो डेंसिटी का मतलब क्या होता है, डोनर एटम, कौन कितना एटम डोनेट कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डोनर एटम। तो सबसे पहले हमारे अपने कंपाउंड को चेक करते हैं उसमें कितना लिगेंड्स अटैच्ड है। सपोज कीजिए कि ये कंपाउंड हमारे पास, इसमें NH3 जो है ये 6 लिगेंड हमारे पास अटैच है, क्योंकि सेंट्रल मेटल एटम से ये 6 लिगेंड अटैच है जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मौजूद है, उसे हम लोग लिगेंड बोलते हैं। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कितना है, 6 है, यहाँ पे ये 6 है, ये टोटल 6 है हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, सेंट्रल मेटल एटम हो गया, ये हमारा 6 है, सेंट्रल मेटल एटम से 6 तो लिगेंड कितना हो गया, 6 हो गया। और डोनर अमोनिया के पास केवल एक लोन पेयर है,
ये अमोनिया ही एक डोनर एटम है जो डोनेट कर सकता है सेंट्रल मेटल एटम को। तो इसको हम लोग एक मतलब इसका डेंसिटी 1 मानेंगे क्योंकि नाइट्रोजन ही एक डोनर साइट है। तो 6 × 1 अगर हम करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो इन्होंने प्रपोज किया कि इसका जो स्ट्रक्चर बनने वाला है वो किससे से बनने वाला है कि सेंट्रल मेटल एटम को आपको बीच में रखना है। सबसे पहले इन्होंने लिया सेंट्रल मेटल एटम, यहाँ पर इन्होंने सेंट्रल मेटल एटम को लिया, ठीक है। तो इन्होंने सेंट्रल मेटल एटम लिया कोबाल्ट लिया और इसे कितना लिगेंड अटैच है वो 6 डंडा लगाया, 1 2 3 4 5 6। तो सब तरफ अमोनिया लगाया है इस तरह से। NH3 कितना है 6, NH3 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 लिगेंड को सॉलिड बॉन्ड से दिखाया और काउंटर आयन जो स्क्वायर ये हमारे इसको हम लोग बोलते हैं काउंटर आयन। ये कितना हमारे पास मौजूद है 3 है, तो इसको 3 को इस तरह से दिखाया, 3 को इस तरह से। ये Cl कहीं पर भी आप लगा सकते हैं इसको, Cl ये Cl है। तो लिगेंड जो अटैच है सेंट्रल मेटल एटम से वो सॉलिड है और जो डैश 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 है वो क्या है हमारा काउंटर आयन है। तो डैश 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 हमारा क्या है काउंटर आयन है और हमारा सॉलिड बॉन्ड जो है हमारा वो क्या है लिगेंड है। ये हमारा लिगेंड है। तो अमोनिया लिगेंड है। तो बेसिकली ये क्या है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है या कोऑर्डिनेट बॉन्ड की तरह आप इसको इस तरह से भी दिखा सकते हो कि लोन पेयर डोनेट हो रहा है, इससे से डोनेट हो रहा है, लेकिन हम दिखाते नहीं है, केवल एक सिंगल लाइन देते हैं सॉलिड लाइन टू एक्सप्लेन to show that ammonia is donating its lone pair to central metal atom। तो उन्होंने इस तरह का स्ट्रक्चर प्रपोज किया और ये स्ट्रक्चर्स फिर उन्होंने दूसरा कंपाउंड लिया जिसको एक्सप्लेन करने का प्रयास किया। तो अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ जिसको वर्नर ने एक्सप्लेन किया था, ठीक है। तो लेट अस अंडरस्टैंड कि दूसरा क्वेश्चन क्या है कि उन्होंने कोबाल्ट लिया, कोबाल्ट, ठीक है, ये कोबाल्ट लिया, कोबाल्ट को NH3 एक क्वेश्चन इस तरह का बनेगा NH3 कोऑर्डिनेशन नंबर जो है ना हमारा 6 होना चाहिए। तो Cl और ये Cl2 रहने देते हैं। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने पहले भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 लिया था क्योंकि लिगेंड इसका 6 था, 6 मेटल एटम 6 लिगेंड अटैच था। यहाँ पर देखिए ये 6 लिगेंड अटैच्ड है, ये 6 लिगेंड अटैच है। और इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ 5 लिगेंड है, ये 5 लिगेंड और यहाँ पर 1 है, तो 5 + 1 कितना हो जाएगा 6। यहाँ पर भी 6 कोऑर्डिनेशन नंबर है। तो लेट अस अंडरस्टैंड कि इसको कैसे बनाना है। तो ये हो जाएगा हमारा Cl2। तो लेट अस अंडरस्टैंड, सबसे पहले प्राइमरी वैलेंसी निकालते हैं। सबसे पहले इन्होंने प्राइमरी वैलेंसी निकाला। प्राइमरी वैलेंसी इसको समझते कि किस तरह से निकालेंगे प्राइमरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी इज इक्वल टू क्या होता है ऑक्सीडेशन नंबर होता है, और ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का तरीका हम लोगों को पता है किस से निकालना है कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको इस एटम को X मान लेना है और 5 अमोनिया क्या है न्यूट्रल लिगेंड है तो 5 × 0 और क्लोरीन कितना होता है क्लोरीन 1 है और इसका कितना लेते हैं -1 + 2 × -1। ये काउंटर आयन का 2 जो है वो यहाँ पे है और क्लोरीन का -1 ऑक्सीडेशन, ये टोटल होल न्यूट्रल है तो यहाँ पर 0 कर देंगे क्योंकि NH3 हमारा क्या है न्यूट्रल लिगेंड है, पहले लिखा दिया था मैंने। मैं इसका आगे चल के लिस्ट देने वाला हूँ न्यूट्रल लिगेंड का। तो ये न्यूट्रल लिगेंड हो गया, न्यूट्रल लिगेंड हो गया। तो X + 0 -1 - 2 = 0। X = +3। X = +3। Now let us calculate the secondary valency। इसको सेकेंडरी वैलेंसी कैसे निकालेंगे वो देखिए। सेकेंडरी
सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना सीखते हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ लिगेंड्स इनटू डेंसिटी तो नंबर ऑफ लिगेंड्स कितना है यहाँ पर? 5। डोनर कितना है? 1। फिर प्लस डालेंगे क्लोरीन के लिए। अभी कितना है? 5 यहाँ अमोनिया का हुआ, 5 अमोनिया का हुआ, 5 अमोनिया का, क्लोरीन 1 है तो 1 इंटू -1 करेंगे, प्लस 1 इंटू -1 करेंगे, दैट इज इक्वल टू 5 - 1 दैट इज इक्वल टू 4। दोनों साइड एक ही है ना, तो प्लस लेंगे। डोनेटिंग के लिए हम लोग क्या लेंगे? प्लस लेंगे, सॉरी ये प्लस। तो 1 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 1 इंटू 1 दैट इज 1, प्लस इसको हम लोग कर देते हैं चेंज, तो ये हो जाएगा 5 + 1 6। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आया। तो उसी तरह ठीक वर्नर की तरह स्ट्रक्चर इसका बनाएंगे। लेट अस ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंपाउंड। इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सेंट्रल मेटल एटम लेंगे CO, उसके बाद 6 डंडा खींचेंगे इस तरह से, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए एक चीज़ नोटिस कीजिए कि आपका जो क्लोरीन है, ये क्लोरीन का मैं बात कर रहा हूँ, ये क्लोरीन जो है आपका प्राइमरी वैलेंसीज में भी काउंट हो रहा है और आपका ये क्लोरीन आपका सेकेंडरी वैलेंसीज में भी काउंट हो रहा है। जो लिगेंड आपका प्राइमरी वैलेंसी में भी काउंट होता है और कोऑर्डिनेशन नंबर में भी काउंट होता है, सेकेंडरी वैलेंसी में भी काउंट होता है, तो उसके लिए स्ट्रक्चर कैसे बनता है वो मैं बताता हूँ। तो ये CO हो गया। सबसे पहले NH3 लिखिए, यहाँ पर NH3, यहाँ NH3, 5 NH3 लगाना है, NH3 5 हो गया और एक क्लोरीन लगेगा। क्लोरीन आपका किसमें भी मौजूद था? प्राइमरी में भी था, सेकेंडरी में भी था, तो उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे सॉलिड लाइन भी यूज़ करेंगे और एक हम लोग डॉट डॉट लाइन भी यूज़ करेंगे, ठीक है, ये डॉट 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 लाइन। अब बाकी 2 क्लोरीन जो बाहर था उसके लिए हम लोग डॉट 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 लाइन इस्तेमाल करेंगे, कहीं पर भी डाल सकते हैं हम इस तरह से। तो ये हमारा स्ट्रक्चर बना किसका? CONH3 5Cl Cl2 का। तो ठीक है, उसी तरह एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, विल गेट एन आइडिया मोर कि उन्होंने कैसे बनाया था। लेट अस टेक दिस अनदर एग्जांपल ऑफ टू एक्सप्लेन द वर्नर पोस्टुलेट, जो लास्ट टाइम जिसको समझ में नहीं आया वो देख सकते हैं कि NH3 4 Cl2। हम कोऑर्डिनेशन नंबर 6 प्रिपेयर मतलब 6 बना रहे हैं क्योंकि वर्नर ने ही लिया था 6, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आने वाला है। तो यहाँ पर देखिए Cl हो गया, ठीक है। यहाँ पर 4 + 2 कितना होता है? 6। तो 4 + 2 6, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला कंपाउंड बना है। तो लेट अस कैलकुलेट द प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी निकालते हैं। प्राइमरी वैलेंसी सॉल्यूशन निकालते हैं। प्राइमरी वैलेंसी में क्या करेंगे? पहले सबसे पहले x लेंगे, 4 इंटू अमोनिया कितना होता है? 0, और ये Cl2 का क्या लेंगे? 2 इंटू -1 और प्लस बाहर में 1 इंटू -1 इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करते हैं। x - 2 - 1 इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू +3, राइट। तो ये हमारा प्राइमरी वैलेंसी आ गया। अब चलते हैं सेकेंडरी वैलेंसी की तरफ। सेकेंडरी वैलेंसी इसको सॉल्व करते हैं। तो नंबर ऑफ लिगेंड कितना? 5, डेंसिटी 1 क्योंकि नाइट्रोजन एक डोनर साइट है, और क्लोरीन कितना है? 2, डेंसिटी कितना है? 1। सॉरी, अमोनिया कितना है वहाँ पे? अमोनिया शायद 4 है, 4 अमोनिया है, देखिए यहाँ पर 4 है, तो 4 इसको कीजिए 4, तो ये 4 बनेगा। तो 4 इंटू 1 1, 4 दूनी थे 6 बन गया। तो ये सेकेंडरी वैलेंसी 6 हो गया। अब यहाँ पर नोटिस करने वाली बात है कि यहाँ पर क्लोरीन 2 मौजूद है जो आपने यहाँ पर बनाया, और यहाँ पर वही क्लोरीन 2 बार मौजूद है, एक बार सॉलिड एक बार डॉट बनेगा। 2 क्लोरीन का और 1 क्लोरीन बाहर है उसका डॉट बनेगा। तो स्ट्रक्चर बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो ये सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सेंट्रल मेटल एटम लेंगे, 1 डंडा, 2 डंडा, 3 डंडा, 4 5 6,
ठीक है। तो सबसे पहले 4 अमोनिया लगाते हैं, NH3 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 NH3, ठीक है। क्लोरीन 2 ठो लगेगा, क्लोरीन क्लोरीन 6 ठो हो गया। और क्लोरीन में क्या आपका एक सॉलिड में भी मौजूद है, प्राइमरी में मौजूद है और सेकेंडरी में मौजूद है, और एक टोटल काउंटर आयंस की तरह Cl, ठीक है। इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा आपका, ठीक है। इसमें क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछते हैं, एक वैराइटीज ऑफ क्वेश्चन और है जो कि आपका एनसीईआरटीज में दिया हुआ है। तो लेट अस टेक दैट एग्जांपल, विल गेट मोर आइडिया, ठीक है। तो एक मिनट, तो चलिए हमारा नेक्स्ट जो है, जो कि पॉपुलर क्वेश्चन है, जिसे पूछा जाता है क्वेश्चन कि रिएक्शन विथ एक्सेस AgNO3, एक्सेस AgNO3। तो यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, जिसको हम लोग बोलते हैं ये कोऑर्डिनेशन, ये स्क्वायर ब्रैकेट के जो बाहर जैसे क्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए मैंने क्या बताया था, ये कोऑर्डिनेशन नंबर के बाहर, ये देखिए ये स्क्वायर ब्रैकेट के जो बाहर होता है, इसको हम लोग बोलते हैं काउंटर आयन। क्या बोलते हैं? काउंटर आयंस। ये काउंटर आयन ही प्रेसिपिटेट बनाता है। अंदर वाला जो है वो नॉन आयनाइजेबल पार्ट है, ये आयंस में नहीं बदलता है, लेकिन बाहर वाला पार्ट जो है वो हमारा बदलता है काउंटर आयंस में, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं काउंटर आयंस। तो ये काउंटर आयंस है, ये काउंटर आयन ही हमारा प्रेसिपिटेट बनाता है। सपोज कि यहाँ पर ClX है और मैं इसको एक्सेस AgNO3 के साथ रिएक्शन करा रहा हूँ, तो ये हमें क्या देगा, XAgCl, जो कि वाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा, जो कि वाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा, वाइट प्रेसिपिटेट, वाइट प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट, ये वाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा। तो ठीक इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन होता है। लेट अस टेक वन एग्जांपल। एग्जांपल के तौर पर अगर हम लेते हैं, यहाँ पर हम लोग पहले देख चुके हैं CnH3 5 Cl और यहाँ पर Cl2 है। ये 2 Cl बाहर है काउंटर आयंस की तरह, और इसका एक्सेस AgNO3 के साथ अगर हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं तो व्हाट इट विल गिव, इट विल गिव 2 AgCl white precipitate, 2 AgCl white precipitate। तो on this basis let us solve one question, ठीक है, we'll get more idea। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस क्या बनने वाला है। एक क्वेश्चंस जो है बनने वाला है यहाँ पर देखिए और देखिए एक चीज़ और है कि आपको यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के तौर पे ध्यान रखना है कि एक तो 1 नंबर पॉइंट ये हुआ, और दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट विच यू हैव टू कीप इन माइंड इज कंडक्टिविटी। दे विल आस्क यू टू फाइंड आउट द कंडक्टिविटी, कि कंडक्टिविटी कैसे होगा। तो कंडक्टिविटी डिपेंड करेगा नंबर ऑफ आयंस पे। कंडक्टिविटी किस पर डिपेंड करेगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस। जितना नंबर ऑफ आयंस होगा उतना कंडक्टिविटी बढ़ेगा, ज़्यादा आयंस होगा तो ज़्यादा कंडक्टिविटी बढ़ेगा। तो इट डिपेंड्स ऑन दैट, ठीक है। तो आयंस को हम लोग निकालना सीखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं कि इसमें पहले हम लोग निकालते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl कितना और नंबर ऑफ आयंस कितना है, ठीक है। फाइंड, ठीक है, क्वेश्चन देखिए, फाइंड moles of AgCl precipitate, find moles of AgCl PPT and number of ions, and compare conductivity, तो ये एक मास्टर क्वेश्चन है, इससे सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कंपेयर कंडक्टिविटीज, ठीक है, कंडक्टिविटी। तो इसमें क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है CONH3 6Cl3। तो ये कितना अमाउंट ऑफ एक्सेस AgNO3 के साथ अगर हम लोग इसका रिएक्शन कराएंगे एक्सेस AgNO3 के साथ, तो ये कितना अमाउंट ऑफ Cl देगा? 3 AgCl प्रेसिपिटेट देगा, 3 AgCl वाइट प्रेसिपिटेट देगा। और अगर इसका हम लोग नंबर ऑफ आयंस बात करें, तो अगर हम इसको आयन से बदलेंगे तो ये आयंस कितना बनेगा? इसको अगर आयन से ब्रेक करेंगे तो कितना आयंस में ब्रेक होगा? ये CONH3 6, ठीक है। ये Cl3 अगर इसको आयन से बदलेंगे तो ये दो तरीके से टूटेगा, इस तरह से टूटेगा, दो आयंस बनाएगा, CONH3 6 3 माइनस 3 प्लस और ये 3Cl माइनस, क्योंकि क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर माइनस होता है, और यहाँ पर 3 है तो यहाँ 3 को उठा के यहाँ पर रख देना,
एक कटायन होगा और एक अनायन होगा, एक कटायन होगा और एक अनायन होगा। तो इसमें टोटल आयंस कितना बना, तो इसमें टोटल आयंस, तो टोटल अगर आयंस बोले तो इसमें टोटल आयंस बना 3 इधर और 1 इधर, तो 3 + 1 कितना हुआ 4, 4 आयंस बना। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा इस तरह का बनेगा, 4 आयंस बना, इसमें 4 आयंस बना, इसको मान लेते 1। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, जिससे हम लोगों को और आइडिया हो कि यहाँ पर जैसे कि ये हमारे पास क्वेश्चन है CONH3, अब ये 5 है और एक Cl है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला बना रहे हैं, तो Cl2 है, इसका एक्सेस एजेनिटी के साथ रिएक्शन अगर हम लोग करेंगे तो कितना अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेट देगा, 2 देगा, 2 AgCl वाइट प्रेसिपिटेट देगा। ठीक है, और दूसरी बात कितने आयंस में टूटेगा, अगर इसको तोड़ना चाहेंगे आयंस में तो कैसे टूटेगा, CO ये 2 है तो यहाँ पर 2 चला जाएगा, यहाँ पर 2 चला जाएगा, 2+। ठीक है, तो CONH3 5 Cl 2+ और 2 Cl-, तो टोटल आयंस कितना हुआ, टोटल आयंस अगर हम बात करें, टोटल आयंस हुआ 2 + 1, ये 2 और ये टोटल 1 को, टोटल को मानेंगे 1, तो ये 2 + 1 कितना हो गया 3 हो गया हमारे पास। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जिससे और हम लोग कंपेयर कर सकें कंडक्टिविटी। तो यहाँ पर देखिए 3 आयंस बना। अगर हम लोग एक दूसरा क्वेश्चन लें जिसमें 3 क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन CONH3 4 यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस को लेते हैं, यहाँ पर देखिए CONH3 4 Cl2 Cl, तो ये कितना बनेगा, 1 AgCl वाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा। इसको आयंस में अगर तोड़ना चाहेंगे तो कितना आयंस बनेगा, CONH3 4 ये प्लस ये Cl-, तो टोटल आयंस कितना बना, टोटल आयंस बना 1 + 1 2 आयंस बना ये। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए टोटल आयंस कितना बना, अगर हम लोग कंडक्टिविटी का बात करें तो इसमें कितना बन रहा है 4, इसमें बन रहा है 3, इसमें 2 बन रहा है, इसमें 3 बन रहा है, इसमें 3 बन रहा है और इसमें 2 बन रहा है। तो कंडक्टिविटी का अगर हम कंपैरिजन करें तो कंडक्टिविटी कैसे कंपेयर कर सकते हैं, कंडक्टिविटी को अगर हम बोलें, क्योंकि कंडक्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ आयंस है, तो कंडक्टिविटी को हम कंपेयर करेंगे तो 1 > 2 > 3। ठीक है, 1 में कितना आ रहा है 4 आयंस आ रहा है, इसमें 3 आयंस आ रहा है और इसमें 2 आयंस आ रहा है। कभी कभी क्वेश्चंस में ऐसा दिया रहेगा कि कौन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है। अगर हम टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का बात करें तो इसको हम लोग बोलेंगे, इसको हम लोग टोटल को बोलेंगे 1 और इसको बोलेंगे 3, तो इसको बोलेंगे 1:3 इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इसको 1:3 इलेक्ट्रोलाइट भी बोलते हैं। अगर हम लोग इसको टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में अगर कैटेगराइज करें, अगर हम लोग इसका बात करें तो इसको हम लोग बोलते हैं 1, टोटल को 1 मानेंगे, इसको 2, तो 1:2 इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पर देखिए, इसको हम लोग बोलेंगे 1:1 इलेक्ट्रोलाइट, 1:1 इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो ये था हमारा वर्नर थ्योरी का पूरा एक्सप्लेनेशन और उसका एक्सेस एजेनिटी के साथ किस तरह से प्रेसिपिटेट बनाता है, कितना नंबर ऑफ आयंस मिलता है, वो हम लोग इसे सीख गए हैं। एक एनसीईआरटी का प्रॉब्लम देखते हैं कि एनसीईआरटी के प्रॉब्लम में किस तरह से दिया हुआ था, कि यहाँ पर दिया हुआ हमारे पास कि ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन मेड विद द एक्वस सॉल्यूशन असाइन सेकेंडरी वैलेंसीज टू मेटल इन द फॉलोइंग कंपाउंड। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन एनसीईआरटी का उठाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि असाइन सेकेंडरी वैलेंसीज टू मेटल्स। तो हमारे पास कुछ कॉम्प्लेक्स सॉल्ट दिया हुआ है और उसका मोल्स ऑफ AgCl प्रेसिपिटेट भी दिया हुआ है,
और हम लोगों को पता है कि जो भी मोल्स ऑफ AgCl का प्रेसिपिटेट बनता है वो काउंटर आयंस बनता है, ठीक है। तो हमारे पास ये कंपाउंड है, इसमें प्रेसिपिटेट कितना बना रहा है 2, यानी कि Cl बाहर में होगा 2, तो इसका जो स्ट्रक्चर बनने वाला है वो PdNH3 4Cl2, ठीक है। तो इसका हम लोगों को सेकेंडरी वैलेंसी अगर असाइन करने के लिए दिया जाए, हम लोग SV यूज करें सेकेंडरी वैलेंसी के लिए, इसका कितना हो जाएगा 4। और यहाँ पर देखिए इसमें दूसरे क्वेश्चन में हमारा मोल्स ऑफ AgCl कितना है 2 है, तो हम लोग यहाँ पर भी इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएंगे NiH2O6 और ये बनेगा Cl2। इसका सेकेंडरी वैलेंसी अगर हम लोग बात करें तो वो क्या बनेगा 6, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं दूसरी तरफ, यहाँ पर कितना बन रहा है 0, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर H2, इसका जो स्ट्रक्चर बनने वाला है H2PT Cl6, क्योंकि इसका कोई काउंटर आयंस नहीं है जो कि 0 प्रेसिपिटेट बना रहा है, ठीक है। H2 तो प्रेसिपिटेट करेगा नहीं HNO3 के साथ, तो यहाँ पर इसका सेकेंडरी वैलेंसी कितना हो जाएगा 6। उसी तरह यहाँ पर कितना बन रहा है 1, तो CO लिखना है इस तरह से, NH3 4 करना है और Cl2 और 1 बाहर कर देना है, क्योंकि 1 मोल ऑफ AgCl बनने वाला है, ठीक है। इसका सेकेंडरी वैलेंसी कितना हो जाएगा 6, क्योंकि 4 + 2 6 होता है, Sv6। ठीक उसी तरह यहाँ पर भी प्रेसिपिटेट 0 हो रहा है तो यहाँ पर भी ऐसे कर दीजिए, PT NH3 2Cl2, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाला कंपाउंड बना रहा है, ये 2 + 2 तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4, और यहाँ पर प्रेसिपिटेट 0 बन रहा है, तो इसका सेकेंडरी वैलेंसी अगर बात किया जाए तो वो हो जाएगा 4। तो दिस इज हाउ द क्वेश्चंस ऑफ सेकेंडरी वैलेंसीज प्राइमरी वैलेंसीज इज सॉल्व्ड बेस्ड ऑन वर्नर थ्योरीज। तो वर्नर थ्योरी से यही क्वेश्चंस बनते हैं। तो लेट अस अंडरस्टैंड द अनदर इम्पॉर्टेंट concept of coordination compound is important definitions pertaining to coordination compound. Let us begin. Before we get into the important definitions, let us understand the difference between the double salt and a complex salt. तो हम लोगों को वो डिफरेंस समझना है सबसे पहले, then we'll come to important terms. तो सबसे पहले difference between double salt and coordination compound and a complex salt इसको समझते हैं पहले, ठीक है। तो लेट अस अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट करते हैं, यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट होगा, यहाँ पर डिफरेंस, तो ये हो गया हमारा डबल सॉल्ट और ये हमारा हो गया कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। तो डबल सॉल्ट क्या होता है? डबल सॉल्ट 2 सिंपल सॉल्ट से मिलके बनता है, ठीक है। और ये क्या होता है, इसमें ये डिसोसिएट होता है इनटू आयंस, 2 सिंपल सॉल्ट से बनता है, ठीक है। और इसमें कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जो होता है उसमें एक सेंट्रल मेटल एटम होता है जो ट्रांजिशन मेटल्स होता है, और लिगेंड्स होता है और काउंटर आयंस होता है, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स बनाया जाता है। डबल सॉल्ट में 2 सिंपल सॉल्ट मिलकर डबल सॉल्ट बनाता है। और डबल सॉल्ट को कैसे हम लोग पहचानते हैं? वो डिसोसिएट इनटू आयंस इन सॉल्यूशन बट स्टेबल इन सॉलिड फॉर्म। क्या करता है? ये डिसोसिएट कर जाता है आयंस में, it dissociates into ions in solution form, in solution, but stable in solid form, in solid form. सॉलिड फॉर्म में ये टूटता नहीं है, और ये क्या एक्वस फॉर्म में ये आयंस में बदल जाता है। और इस केस में ये डू नॉट डिसोसिएट इन सॉल्यूशन, और ये स्टेबल होता है सॉल्यूशन में भी और एक्वस में भी। इसका हम लोग क्या लिखेंगे? डू नॉट डिसोसिएट इनटू आयंस, डू नॉट डिसोसिएट इन सॉल्यूशन एंड stable in both solid and solution form, and stable
in both solid and solution form. ये दोनों में स्टेबल होता है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट, ठीक है। ये जो होता है डबल सॉल्ट जो होता है वो हर एक टेस्ट देता है, हर एक आयंस का टेस्ट देता है। ये क्या करता है, इट गिव टेस्ट ऑफ ईच आयन, गिव टेस्ट ऑफ ईच आयन। इसका मतलब क्या है कि ईच आयन का मतलब क्या है कि हर एक आयंस का ये टेस्ट देता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास मोहर सॉल्ट है, ये मोहर सॉल्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं मोहर सॉल्ट। इसका फॉर्मूला होता है FeSO4 डॉट NH42SO4 डॉट 6H2O। ये हमारा मोहर सॉल्ट है। अगर हम इस हर एक आयन का अगर हम लोग टेस्ट करना चाहें तो इसका भी टेस्ट देगा, Fe2 प्लस का टेस्ट देगा, इट विल गिव टेस्ट ऑफ NH4 प्लस, इसका भी देगा, सल्फाइड का भी टेस्ट देगा, सल्फेट का भी टेस्ट देगा, ठीक है। मोहर सॉल्ट ये क्या होता है, ये हर एक आयंस का टेस्ट देगा। लेकिन इन द केस ऑफ आपका कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में इट डज नॉट गिव टेस्ट ऑफ ईच आयन, इट डू नॉट गिव टेस्ट ऑफ ईच आयन। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एग्जाम्पल है, सपोज कीजिए ये पॉपुलर एग्जाम्पल जो हम लोग शुरू से ले रहे हैं, K3K4FeCN6, ठीक है। ये क्या करेगा, ये इस तरह से टूटेगा 4K प्लस और इस तरह से FeCN6 माइनस 4 माइनस, तो ये टेस्ट इसका देगा, केवल इसका टेस्ट देगा, इसका टेस्ट ये नहीं देगा, डू नॉट गिव टेस्ट, ठीक है। इसका नो टेस्ट, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर जो भी हमारा सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड होता है वो डिसोसिएट नहीं करता आयंस में, और जिसके कारण से ये टेस्ट नहीं देगा। ये जो हमारा आयरन है ये टेस्ट नहीं देगा, ये भी टेस्ट नहीं देगा, केवल दिस ओनली विल गिव टेस्ट, दिस ओनली गिव टेस्ट। तो यही एक मेजर डिफरेंस है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट और डबल सॉल्ट के बीच में, ठीक है। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं डबल सॉल्ट, ठीक है। तो ये हमारा टेस्ट देता है, ये हमारा टेस्ट नहीं देता है, ठीक है। ठीक है, तो ये टेस्ट देता है, ये टेस्ट नहीं देता है। तो ये है मेजर डिफरेंस। सो लेट अस नाउ अब हम लोग को समझना चाहिए कि इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या क्या है जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को एक्सप्लेन कर सकता है। तो लेट अस अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंट टर्म्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इंपॉर्टेंट टर्म्स, तो सबसे पहले हम लोग इंपॉर्टेंट कंपाउंड लेते हैं जो कि K4FeCN6 है। K4FeCN6 हम लोग इसको क्या बोलते हैं, इस जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर है उसको हम लोग बोलते हैं काउंटर आयंस। ये हमारा काउंटर आयंस है, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और एंटिटी जो इसके अंदर मौजूद एटम्स और लिगेंड है उसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। इसको बोलते हैं सेंट्रल मेटल एटम, और या तो हम लोग इसको बोलते हैं लुईस एसिड। जो लोन पेयर लेता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लुईस एसिड। ये हमारा लिगेंड है, लिगेंड हमारा लोन पेयर डोनेट करता है, लोन पेयर भी डोनेट करता है, सिंगल इलेक्ट्रॉन भी डोनेट कर सकता है लिगेंड। इसको हम लोग यूजुअली क्या बोलते हैं, लुईस बेस, ठीक है। तो इस सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स को मिल करके ये बनाता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है। चलते हैं आगे।
सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होता है। कोऑर्डिनेशन एंटिटी, कोऑर्डिनेशन एंटिटी उसको बोलते हैं जो कि सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड अटैच होता है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी कंस्टिट्यूट ऑफ ए सेंट्रल मेटल एटम और आयन बॉन्डिंग टू फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कोऑर्डिनेशन एंटिटी किसको बोलते हैं? सेंट्रल मेटल एटम atoms attached to fixed number of ions or ligands इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन एंटिटी। ठीक है, सेंट्रल मेटल एटम हैज टू फिक्स नंबर ऑफ आयंस और लिगेंड, इसको कोऑर्डिनेशन एंटिटी बोलते हैं। दूसरा हमारे पास होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर किसको बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है? सेंट्रल मेटल एटम आर इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट। सेंट्रल मेटल एटम attached to fix number of ions या ligand डायरेक्ट लिखते हैं, number of ligand and enclosed in square bracket ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होता है? उसके अंदर जो जो मौजूद होता है, सेंट्रल मेटल एटम अटैच टू फिक्स नंबर ऑफ आयंस, और ये क्या है? अटैच टू फिक्स नंबर ऑफ आयंस इन स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट इज इंपॉर्टेंट, तो उसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। काउंटर आयंस क्या होता है? जो ब्रैकेट के आउटसाइड होता है, जो ब्रैकेट के आउटसाइड है, जैसे यहाँ पर K4 है, ब्रैकेट के आउटसाइड हो ये इस तरफ भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ काउंटर आयंस किसको बोलते हैं? ionizable part outside the bracket. The ionizable part outside the bracket. Outside the bracket is counter ions. ठीक है, यहाँ पर counter ions कौन है? K plus. Example, K plus is counter ions in K4 FeCN6। समझे? ये हमारा काउंटर आयंस है। काउंटर आयन हो गया। सेंट्रल मेटल एटम समझिए यूजुअली ट्रांजिशन मेटल होता है, उसको लुईस एसिड बोलते हैं, और लिगेंड्स को लुईस बेस बोलते हैं। चौथा हमारा लिगेंड्स। लिगेंड किसको बोलते हैं? ठीक है, लिगेंड्स हमारा क्या होता है? चूंकि लोन पेयर डोनेट करता है, लिगेंड इज या तो सिंगल इलेक्ट्रॉन डोनर हो सकता है, या तो हमारा लोन पेयर डोनर हो सकता है। यहाँ पे कहने का मतलब ये है, लिगेंड इज वन इलेक्ट्रॉन डोनर और टू इलेक्ट्रॉन, यूजुअली टू इलेक्ट्रॉन डोनर और लुईस है। लोन पेयर डोनर को हम लोग क्या बोलते हैं? लुईस बेस। इसको हम लोग बोलेंगे लुईस बेस। ठीक है, लुईस बेस और पाई इलेक्ट्रॉन डोनर, ये हमारा क्या होता है? लिगेंड्स होता है। लिगेंड्स को हम लोग क्लासिफाई कर चुके हैं। किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं? मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, पॉलीडेंटेट, हेक्साडेंटेट। पॉलीडेंटेट में हेक्साडेंटेट आता है, एम्बीडेंट लिगेंड या फ्लैक्सीडेंटेट। तो सारी चीज को समझते हैं। पहले हम लोग चलते हैं लिगेंड्स का टाइप देखते हैं कि लिगेंड कौन कौन सा टाइप का होता है। ठीक है, लिगेंड्स पहले हम लोग चलते हैं मोनोडेंटेट लिगेंड पर। पहले हमारे पास है मोनोडेंटेट लिगेंड। मोनोडेंटेट लिगेंड किसको बोलते हैं? मोनोडेंटेट लिगेंड हम लोग
मोनोडेंटेट लिगेंड हम लोग किसको बोलते हैं? मोनोडेंटेट लिगेंड वो लिगेंड होता है जिसमें डोनर साइट एक ही होता है, ठीक है। मोनोडेंटेट लिगेंड किसको बोलते हैं? जिसमें डोनर साइट इज वन। लिगेंड्स इन विच सिंगल एटम इज डोनर, ठीक है, उसको मोनोडेंटेट लिगेंड बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पर Cl-, ठीक है, H2O, NH3, ठीक है, NO, एक्सेट्रा। क्योंकि इसमें डोनर साइड क्या है, इसको X- ले सकते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन सब ले सकते हैं। इसमें डोनर साइड केवल एक है, ऑक्सीजन है या नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों है यहाँ पर, नाइट्रोजन यूजुअली होता है नाइट्रोजन, ठीक है, डोनर साइड है, ठीक है। इसी यूनिडेंटेट लिगेंड बोलते हैं इसको, मोनोडेंटेट या यूनिडेंटेट भी बोलते हैं इसको, मोनोडेंटेट भी बोलते हैं या यूनिडेंटेट भी बोलते हैं, डेंटेट, ठीक है। दूसरा हमारे पास होता है डाइडेंटेट या बाइडेंटेट लिगेंड, डाइडेंटेट या बाइडेंटेट लिगेंड। लिगेंड वैसा लिगेंड जिसमें दो डोनर साइट अवेलेबल है, वैसा लिगेंड जिसके पास दो डोनर साइट अवेलेबल है, ठीक है। लिगेंड्स इन विच टू डोनर साइट इज अवेलेबल, टू डोनर साइट इज अवेलेबल, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसका डिटेल हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, पहले फॉर एग्जाम्पल ऑक्जेलेटो, जैसे ऑक्जेलेटो लिया, ऑक्जेलेटो, इसको OX2- भी बोलते हैं। इसमें देखिए कि इसमें डोनर साइट दो अवेलेबल है, ठीक है, यहाँ डोनर साइट है, यहाँ डोनर साइट है। जैसे कि हम लोग लेते हैं इथेन 1,2-डायमीन, ठीक है, इथेन 1,2-डायमीन, इसमें दो डोनर साइट अवेलेबल है, या इसको EN भी बोलते हैं हम लोग, जैसे इसको OX बोलते हैं तो इसको EN भी बोलते हैं। जैसे यहाँ पर दो डोनर साइट अवेलेबल है, NH2 to NH2, यहाँ पर दो डोनर साइट अवेलेबल है, एक ये है, एक ये है, दो डोनर साइट अवेलेबल है। तो जब ये डोनर साइट अगर हम लोग किसी मेटल एटम को देंगे, यहाँ पर मेटल एटम है, तो ये क्या करता है, ये लोन पेयर जो है ये इसको डोनेट करता है, इस मेटल एटम को डोनेट करता है। जैसे यहाँ पर लोन पेयर है तो ये लोन पेयर को डोनेट करता है। जब ये लोन पेयर को डोनेट करता है तो ये चीलेट का फॉर्मेशन करता है। चीलेट मतलब क्या होता है, रिंग, चीलेट फॉर्मेशन, ठीक है, रिंग्स फॉर्मेशन होगा, रिंग्स फॉर्मेशन। यहाँ पर भी चीलेट बन रहा है, चीलेट, चीलेट क्या होता है, रिंग का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, रिंग फॉर्मेशन। यहाँ पर आपका यूनिडेंटेट लिगेंड में क्या हो रहा है कि चीलेट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, नो चीलेट फॉर्मेशन, नो चीलेट फॉर्मेशन, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग पॉलीडेंटेट लिगेंड के पास। पॉलीडेंटेट लिगेंड किसको बोलते हैं? तो लेट अस अंडरस्टैंड द पॉलीडेंटेट लिगेंड। पॉलीडेंटेट लिगेंड, पॉलीडेंटेट लिगेंड किसको बोलते हैं? पॉलीडेंटेट मतलब मोर देन वन डोनर साइट, मोर देन वन डोनर साइट, एक से अधिक डोनर साइट होता है। जैसे कि EDTA4-, हेक्साडेंटेट लिगेंड है ये EDTA, ये हमारे पास क्या है, EDTA एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं EDTA4-, ठीक है, 4-, इसको बोलते हैं इथिलीन डायमीन टेट्राएसीटेट। क्या बोलते हैं? इथिलीन डायमीन
टेट्रा एसीटेटो होता है, टेट्रा एसीटेटो EDTA हम लोग है ना, ये केमिकल होता है जिसको यूज करते हैं हम लोग फॉर टेस्टिंग। टेट्रा एसीटेटो को देखिए किस तरह से बनता है स्ट्रक्चर, यहाँ देखिए EDTA इथिलीन है तो CH2 पहले बनाइए, ठीक है। यहाँ पर नाइट्रोजन डालिए, 2 डोनर इस तरह से निकालिए, यहाँ पर नाइट्रोजन, यहाँ पर देखिए इथिलीन ये हुआ, ये इथिलीन, डायमीन, 2 अमीन हो गया। अब टेट्रा एसीटेटो लगाना है, टेट्रा एसीटेटो, ठीक है। यहाँ पर CH2 CO माइनस, CH2 CO माइनस, CH2 COO माइनस, CH2 COO माइनस। यहाँ पर देखिए डोनर साइड कौन कौन सा है, एक डोनर साइड ये, 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 एक डोनर साइड ये। तो ये क्या कर रहा है, ये भी चीलेट का फॉर्मेशन करेगा, डोनेट करेगा तो चीलेट का फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ पर भी चीलेट फॉर्मेशन होगा, ठीक है। चीलेट फॉर्मेशन यानी कि रिंग का फॉर्मेशन होगा। तो पॉलीडेंटेट में हम लोग अभी EDTA देखते हैं, ठीक है। डाइन होता है, ट्राइन होता है, वो हम लोग जब हम लोग पढ़ेंगे ना IUPAC नेम, उसमें हम लोग सब डिफाइन करेंगे, न्यूट्रल लिगेंड, आयनिक लिगेंड, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम केवल एक समझिए कि पॉलीडेंटेट मतलब मोर देन 1 डोनर साइट होता है। एक होता है एम्बीडेंटेड लिगेंड, एम्बीडेंट लिगेंड, यहाँ पर देखिए एम्बीडेंट लिगेंड, D नंबर, एम्बीडेंटेड लिगेंड। एम्बीडेंट लिगेंड जैसे एम्बीडेक्स्ट्रोक्स पर्सन होता है ना, हु इज एबल टू यूज हिज बोथ हैंड इक्वली वेल। तो ये एम्बीडेंट लिगेंड क्या होता है, इसमें 2 डोनर साइट अवेलेबल होता है, लेकिन एट ए टाइम वो एक ही साइट को यूज करके डोनेट कर सकता है, ठीक है। जिसमें क्या होता है, 2 डोनर साइट इज अवेलेबल, 2 डोनर साइट इज अवेलेबल, लेकिन बट only one can donate at a time, but only one can donate at a time, at a time। जैसे फॉर एग्जाम्पल NO2 माइनस है, NO2 माइनस है, NO2 माइनस है, तो इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्राइटो O, नाइट्राइटो O, सॉरी नाइट्राइटो N, क्योंकि N है इधर, नाइट्राइटो N, ठीक है। ये भी डोनेट कर सकता है, ये भी डोनेट कर सकता है। जब NO2 लिखा रहा है तो नाइट्राइटो N होगा, अगर ONO लिखा रहा है, यहाँ पर माइनस लिखा रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे नाइट्राइटो O, नाइट्राइटो O, क्योंकि पहले नंबर पर यही है, ऑक्सीजन डोनेट कर रहा है। तो देख रहे हैं NO2 जो है हमारा क्या कर रहा है, 2 डोनर साइड अवेलेबल है, लेकिन एट ए टाइम 1 ही डोनेट कर पा रहा है, एक नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन, ठीक है। तो हमारा दूसरा है SCN, जैसे कि SCN है, तो एक बार ये डोनेट कर सकता है, एक बार ये डोनेट कर सकता है। तो अगर SCN पहले लिखा हुआ है तो उसको लिखेंगे थायोसाइनाटो S। अगर NCS लिखा हुआ है तो इस बार हमारा कौन डोनेट करेगा, नाइट्रोजन डोनेट करेगा, इस बार हमारा नाइट्रोजन डोनेट करेगा, इसका नाम रहेगा थायोसाइनाटो N, ठीक है। तो इस तरह से एम्बीडेंट लिगेंड होता है। एक फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड होता है, एक फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड, ठीक है, एक फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड होता है, उसको भी हम लोग कैटेगराइज में समझ लेते हैं कि फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड क्या करता है। एक होता है फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड क्या करता है, फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड क्या करता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 को मेंटेन रखता है। जैसे कि SO4 जो है ना हमारा फ्लेक्सीडेंटेड लिगेंड है, ये फ्लेक्सिबल होता है, डोनेटिंग साइड में ये फ्लेक्सिबल होता है। यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो डोनेट कर रहा है, या तो एक डोनेट कर सकता है या तो 2 डोनेट कर सकता है, तो इसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल डेंटेड लिगेंड। तो ये डिपेंड्स ऑन द कोऑर्डिनेशन नंबर, ये जो सल्फेट आयन है वो डोनेट कर सकता है अपना 1 लोन पेयर या 2, डिपेंड्स ऑन द
नीड एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द कोऑर्डिनेशन नंबर। हम लोगों को पता है कि कोऑर्डिनेशन कोबाल्ट जो है वो हमारा 6 कोऑर्डिनेशन नंबर वाला कंपाउंड बनाता है, जो वर्नर थ्योरीज में पढ़े थे। तो CO अगर Br5 है तो ये SO4 यहाँ पर क्या काम कर रहा है, एक यूनिडेंटेड लिगेंड की तरह काम कर रहा है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 इसका होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 एज पर वर्नर, और हम लोग आगे भी देखेंगे। तो यहाँ पर Br कितना डोनेट करेगा, Br विल डोनेट 5 and SO4 will donate 1 and SO4 will donate 1 lone pair will donate। तो इसको इसमें ऑक्सीजन डोनर है 2। अगर इसी तरह एक कंपाउंड हमारा इस तरह का बना रहे हैं, सेम कंपाउंड है। अब ये देखिए SO4 यहाँ पर यूनिडेंटेड लिगेंड की तरह काम कर रहा है। अब यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर अगर हमारे पास इस तरह का रहा, CO Br4 SO4 है इस तरह से, ठीक है। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला कंपाउंड है। तो इसमें क्या करेगा, Br तो 4 डोनेट करेगा, Br डोनेट 4 एंड SO4 विल डोनेट 2 डोन पे, SO4 डोनेट 2। SO4 डोनेट 2। यहाँ पर ऑक्सीजन डोनर है, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं, सो बिहेव लाइक ए बाइडेंटेड लिगेंड, यहाँ पर यूनिडेंटेड की तरह काम कर रहा है, और यहाँ पर क्या कर रहा है, बिहेव्स लाइक बाइडेंटेड लिगेंड। SO4 बिहेव्स लाइक बाइडेंटेड लिगेंड। इसका उतना डिटेल हम लोग को यूज नहीं होने वाला, बस एक डेफिनेशन वाइज हम लोगों को क्लियर होना चाहिए कि बाइडेंटेड हाँ, बस डेफिनेशन वाइज क्लियर होना चाहिए कि फ्लेक्सीडेंटेड होता क्या है, समझे। तो इसका हम लोगों को कोई खास यूज नहीं है आगे में, बस यहीं तक इसका डेफिनेशन हम लोगों को क्लियर होना चाहिए। फ्लेक्सिबल डेंटेड लिगेंड क्या होता है कि वैसा लिगेंड जो कभी यूनिडेंटेड की तरह काम करता है, कभी बाइडेंटेड की तरह काम करता है, डिपेंड्स ऑन रिक्वायरमेंट ऑफ द कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। एक होता है हमारे पास होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस और एक होता है हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं डिफिनेशन पर। इंपॉर्टेंट डिफिनेशन कितना है, डिफिनेशन नंबर, ये तो लिगेंड्स का हो गया, हमारा टोटल लिगेंड कर लिया हम लोगों ने, 6 था। अब चलते हैं हम लोग 7 पे, ये 4 था, 4 के बाद हम लोग चलते हैं 5 पे। 5 पर हम लोग पढ़ेंगे, 5 पर पढ़ेंगे हम लोग होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस क्या होता है, होमो मतलब क्या होता है, सेम। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, होमो मतलब होता है सेम। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, व्हेन ओनली वन काइंड ऑफ लिगेंड इज प्रेजेंट, व्हेन ओनली वन काइंड ऑफ लिगेंड इज प्रेजेंट, केवल एक लिगेंड ही प्रेजेंट होता है, एक ही टाइप का लिगेंड प्रेजेंट होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर, ये सब का डेफिनेशन हम लोगों को बस पता होना चाहिए, PtCl6, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, Cl क्या है, वन टाइप ऑफ लिगेंड है, वन टाइप ऑफ लिगेंड है। अगर हम लोगों को हेट्रोलेप्टिक समझना है तो लेट अस अंडरस्टैंड हेटेरो मतलब क्या होता है, डिफरेंट, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस, हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस क्या होता है, when two types of, when more than one kind of ligand is present, when more than one kind of ligand is present, उसको बोलते हैं हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। एग्जाम्पल, जैसे कि यहाँ पर ये एग्जाम्पल देखा हम लोगों ने, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग देखें, एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि ये हमारे पास एग्जाम्पल है, PtNH3 सॉरी स्क्वायर प्लानर बनाता है ये, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है, प्लैटिनम का 4 होता है, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर बनाता है, NH3 2Cl2, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये 2 टाइप ऑफ लिगेंड प्रेजेंट है, मोर देन 1 टाइप ऑफ लिगेंड प्रेजेंट है, तो इसको बोलते हैं 2 काइंड ऑफ इज प्रेजेंट, इसको हम लोग बोलते हैं हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। तो ये हमारा डेफिनेशन हम लोगों का टोटल हो गया कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। अब नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग IUPAC नेम को क्लियर करेंगे, और इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको हम लोग देख लेंगे कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर क्या है। 10 मिनट का कॉन्सेप्ट है। IUPAC नेम हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा, बेसिक लेक्चर्स होगा, फिर उसमें हम लोग नेमिंग करना सीखेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग
उसके बाद हम लोग ये पढ़ेंगे, क्या बोलते हैं, VBT पढ़ेंगे, फिर CFT और फिर ऑर्गेनोमेटेरिक कंपाउंड. विद दिस विल वाइंड अप. तो स्टूडेंट्स, इफ़ यू लाइक माई सेशन, आप प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. और जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है फॉर ऑफलाइन कोर्स फ्रॉम भागलपुर, तो मैं अपना नंबर प्रोवाइड कर दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो वहाँ जाके चेक करें और मुझे कांटेक्ट करें फॉर ऑफलाइन कोर्स इन भागलपुर. ठीक है. और यहाँ पर बहुत लोग यहाँ पर प्रिपेयर कर रहे हैं नीट का, JEE का, क्लास 11 12 का. मैं सब कुछ अच्छे से करा रहा हूँ. कोई मतलब कि टाइम लैग नहीं है किसी में भी. कोई सारा सिलेबस एकदम टाइम टू टाइम क्लियर हो रहा है और स्टूडेंट लोग कॉन्सेप्ट भी समझ रहे हैं. कितने स्टूडेंट जो हैं ऑफलाइन ऑनलाइन कोर्सेज जैसे कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट और संस्था का ले करके वो लोग पछता रहे हैं. जैसे कि बहुत से स्टूडेंट हैं जिन्होंने ऑनलाइन कोर्सेज में लिया है एडमिशन, वो अभी मेरे पास पढ़ रहे हैं. वो लोग डिस्क्रिपेंसीज बता रहे कि किस तरह से उन लोगों को ब्लफ किया जा रहा है ऑनलाइन सिस्टम से. तो जो स्टूडेंट हैं वो प्लीज़, मैं उनको रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग ऑनलाइन एजुकेशंस को मत उसके सब्सक्रिप्शन को मत खरीदिए, क्योंकि वो टोटल वेस्ट ऑफ टाइम है, टोटल एनर्जी का वेस्ट है. आप ऑफलाइन में पढ़िए, टीचर आपको अच्छे से पढ़ाएंगे. मैं हूँ भागलपुर में, मैं अच्छे से पढ़ाऊँगा आपको. ठीक है. मेरे पास सारे अच्छे कंटेंट्स हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, अच्छा मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ आपको. एकदम जो भी एक बेस्ट लेवल का, इंडिया लेवल का कोचिंग है वो मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ. ठीक है. तो आप हमारे से जुड़िए. फॉर दिस आप लोगों के लिए मैं बहुत ही थैंकफुल रहूँगा. सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट. and please share more and more to those student who is interested for the course. Thank you so much, my dear student. Have a good day.